Good morning, students. So, we are continuing our chapter number 8, classes and objects in Java. We have learned about the different classes and the different variables. Now, classification of variables declared in class. यहाँ से start करेंगे. First of all, local variables. Variables defined in method or blocks are called local variables. Formal parameters of the methods can also are local variables. They are created when the method or block is started and destroyed when the method or block has completed. Local variables are not initialized by the default values. Then second is instance variable. Instance variable are variable defined within a class but outside any method. These variables are allocated memory from heap area when an object is initiated, created. Instance variable are initialized by the default values. And the class variables, the third classification of variable is class variables. Class variables are variables defined within a class outside any method with the static keyword. These variables are allocated memory only once per class is shared by all its objects. Class variables are initialized with the default values. तो ये तीन क्लासिफिकेशन है वेरिएबल्स के, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड क्लास वेरिएबल्स. चलिए वेरिएबल्स ये सब तो हमने देख लिए. नाउ आवर मेन नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीमॉर्फिज्म, दैट मीन्स मेथड ओवरलोडिंग. चैप्टर 6 के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ के आए कि भाई किस तरह से मेथड ओवरलोडिंग होता है. We have seen first two steps of creating object, declaration and initiation. The third step is initialization. It requires the used constructor. Before we learn about the constructor, let us see the way to implementation polymorphism in Java. Now what is polymorphism? The word polymorphism means many forms, different forms of method with the same name. In Java we can have a different method that have the same name but a different signature. This is called the method overloading. The method signature is combination of the method name, the type, return value, object or base type, list, parameters. For example, if you want to find a maximum of 2 integers, maximum of 3 integers, maximum of 3 double precision real numbers and so one requires to perform similar tasks, but on different set of number. In such scenario, Java facilitates to create method with the same name but different parameters. Finding maximum does not need creation of any object, so it can be defined as a static class method. For example, यहाँ पे मेथड, एक ही मेथड को एक से ज्यादा बार यूज करना, दैट इज नॉन एज द पॉलीमॉर्फिज्म. वो चैप्टर 6 में भी हमने पढ़ा था. तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे मैक्स फंक्शन है, तो मैक्स फंक्शन को एक ही प्रोग्राम के अंदर मुझे 3 बार यूज करना है तो मैं कर सकता हूँ, यानी मेथड इज यूज, बट उसके अंदर जो पैरामीटर्स होने वो अलग होंगे. किस तरह से उसके एग्जाम्पल देखिए. तो स्टैटिक INT मैक्स, अब मैक्सिमम वैल्यू तो उसमें क्या दिया, वेरिएबल्स क्या क्या पैरामीटर दिए, INT x एंड INT y, और फिर कर्ली ब्रेसेस में पूरा पार्ट बनेगा उसका. स्टैटिक INT मैक्स, फिर से मैक्स फंक्शन यूज किया बट इस बार 3 वेरिएबल लिए है, INT x, INT y एंड INT z. फिर से लिया स्टैटिक डबल मैक्स, मैक्स फंक्शन, मैक्स की जो मेथड है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने की जो मेथड है वो तीसरी बार भी यूज हो रही है. इस बार 3 वेरिएबल, बट तीनों के जो डेटा टाइप है वो चेंज हो गए, डबल एक्स, डबल वाई एंड डबल जेड. इट मीन्स आप एक ही टाइप के जो मेथड है उसको एक से ज्यादा बार यूज करना चाहो तो कर सकते हो. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. इट मीन्स मैनी फॉर्म, बट उसके जो सिग्नेचर मीन्स उसके जो पैरामीटर्स, उसके अंदर जो वैल्यूज आप दे रहे हैं वो अलग अलग होनी चाहिए. चलिए उसका एक प्रोग्राम देखते हैं. यू मे बी ट्राई टू डिफाइन अबाउट of forms of maximum method use an application after looking the example of code listing given figure. Here is the polymorphism to print a line as per specified parameter. Call print line without any parameters, print 40 times is equal to characters. Print line INTN prints n times of hash character, whereas print line INT and character ch prints the n times specified character ch. चलिए जावा प्रोग्राम है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से. सबसे पहले क्लास तैयार करेंगे हम, पॉलीडेमो जो है उसके लिए. तो क्लास तैयार कर रहा है हमने, क्लास का नाम दिया है हमने प्रिंट लाइन. अब प्रिंट लाइन देखिए, ध्यान रखिएगा, प्रिंट लाइन में P कैपिटल L कैपिटल है. स्टैटिक वर्ड प्रिंट लाइन, इस बार मैं प्रिंट लाइन की मेथड बना रहा हूँ वो अलग है, ये ध्यान में रखिएगा. जावा इज केस सेंसिटिव, तो ऊपर क्लास के नाम के अंदर जो मैंने प्रिंट लाइन लिखा है वो प्रिंट लाइन, और यहाँ पे स्टैटिक वॉइड के अंदर जो प्रिंट लाइन यूज कर रहा है वो प्रिंट लाइन, दोनों अलग अलग चीजें है.
तो यहाँ पे प्रिंट लाइन मेथड के तौर पे यूज कर रहा हूँ। जहां पे मैं उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या मेथड बना रहा हूँ, क्या यूज कर, तो लूप यूज कर रहा हूँ, फोर लूप का। फोर लूप int I is equal to 0, then I is less than 40, I plus plus system dot out dot print is equal to signature and system dot out dot println में कुछ भी नहीं आएगी, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या होगा ये समझिए। तो int I की वैल्यू कितनी है, 0 है। जब ये प्रिंट लाइन जो मैथड है जब कॉल करवाएगी तो आउटपुट में क्या आएगा, तो I की वैल्यू 0 है, तो क्या होगा, I is less than 40, 0 is less than 40, तो इज इक्वल टू साइन प्रिंट हो जाएगा। फिर तीसरे एक्सप्रेशन है कि I प्लस प्लस में जाएगा, यानी 0 प्लस 1, यानी I की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर से वो चेक करेगा, I इज लेस देन 40, तो 1 इज लेस देन 40, तो फिर से इज इक्वल टू साइन प्रिंट कर देगा। फिर इससे प्लस में जाएगा, यानी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 इज अगेन लेस देन 40, तो फिर से इज इक्वल टू साइन प्रिंट। ऐसे चलता जाएगा 40 टाइम होगा। जैसे ही 39 टाइम में इज इक्वल टू साइन प्रिंट होगी, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 40 टाइम्स ही होगा वो, तो वो जैसे ही प्रिंट हुआ उसकी I की वैल्यू 39 प्लस 1 यानी 40 हुई, यानी 40 इज लेस देन 40, कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो लूप से बाहर निकल जाएगा और नेक्स्ट लाइन ln यूज किया और नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो ये इस तरह से मेथड काम करने वाली है। जो फंक्शन है हमारा, जो मेथड है, वो इस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म का काम करने वाला है। चलिए अब यही सेम प्रिंट लाइन की जो मेथड है, जिसके अंदर इस तरह से एक कोई भी हम लूप यूज करने वाले, फोर लूप के अंदर कुछ वैल्यूज देंगे, कुछ कंडीशन देंगे और कुछ प्रिंट करवाएंगे। यही फंक्शन है, यही मेथड है। इस मेथड को और 2 बार यूज करेंगे, बट यहाँ पे क्या चेंजेस करने वाले हैं, जिसकी वजह से एक ही प्रोग्राम के अंदर, एक ही क्लास के अंदर मैं सेम प्रिंट लाइन वाली मेथड यूज कर पाऊं। तो देखिए क्या है, तो दूसरे के अंदर क्या किया, स्टैटिक वॉइड प्रिंट लाइन intn, यानी n यानी क्या हुआ, नंबर ऑफ टाइम्स, वो यूजर के पास लेंगे। intn मीन्स क्या होगा, वो किसके पास से मिलेगा, यूजर के पास से मिलेगा। फॉर int I is equal to 0, I is less than n, I plus plus system dot out dot print और हैशटैग साइन यूज की है। अब यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू जो भी देगा यूजर, फॉर एग्जाम्पल 10 दे रहा है तो 10 के साथ काउंट होगा, 20 टाइम्स वो हैशटैग है वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे प्रोसीजर सेम है जो मैंने ऊपर समझाई आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बाहर निकल आएगा। तीसरी बार भी यूज किया सेम मेथड को, प्रिंट लाइन को, बट इस बार क्या किया है उन्होंने, क्या चेंजेस किया है, intn नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार यूज करना वो तो यूजर के पास लेंगे, साथ में कैरेक्टर ch यानी कौन सा कैरेक्टर प्रिंट होगा ना, जैसे ऊपर हमने इज इक्वल टू साइन या हैशटैग प्रिंट करवाया, तो ऐसा कैरेक्टर कौन सा प्रिंट होगा वो भी यूजर डिसाइड करेगा। यानी ये यहाँ पे मेथड है तो उसके अंदर का जो डिटेल्स है वो चेंज होगा। प्रोसीजर तो सेम ही, int I is equal to 0, I is less than n, I plus plus system dot out dot println और ch यानी जो कैरेक्टर जो भी आप दोगे वो प्रिंट होके आएगा। यानी कि क्या चेंजेस किए, प्रिंट लाइन मेथड ही यूज किए सभी में, लेकिन क्या क्या चेंजेस किए, पहली बार जो प्रिंट लाइन दी उसमें दोनों दी है कि कौन सा सिंबल प्रिंट करवाना है और कितनी बार प्रिंट करवाना है, दोनों, यानी कैरेक्टर एंड नंबर ऑफ टाइम्स वो दोनों दे दिए है। दूसरा जो प्रिंट लाइन मेथड यूज किया उसमें कैरेक्टर तो दे दिया है, भाई कौन सा कैरेक्टर प्रिंट होने वाला है, बट नंबर ऑफ टाइम्स कितना प्रिंट होने वाला है वो यहाँ पे नहीं दिया है, वो इट इज डिपेंड ऑन द यूजर। और तीसरी बार सेम प्रिंट लाइन मेथड यूज किया, बट इस बार दोनों नहीं दिए, कितने टाइम्स कैरेक्टर प्रिंट होगा वो और कौन सा कैरेक्टर प्रिंट होगा वो दोनों नहीं दिए। चलिए ये यहाँ पे हमने एक क्लास बना दिया प्रिंट लाइन का, जो मेथड के साथ यूज किया हमने। अब उसका कर्ली ब्रेसेस ओवर कर लेंगे। अब हमारा मेन प्रोग्राम बनेगा पब्लिक क्लास पॉलीडेमो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए। अब तीनों मेथड को 1 बाय 1 कॉल करवाएंगे। हमने आगे जो अपने लेक्चर्स देखे मेरे क्लासेस इन जावा और उसके लिए, उसमें ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से जो है वो ऑब्जेक्ट को, रेफरेंस ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करना है, या फिर रेफरेंस मेथड या फिर जिसको हम इंस्टेंस मेथड भी बोल सकते हैं, तो उसको कैसे कॉल करवाना है। तो सबसे पहले क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, फिर डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा और मेथड यूज करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पे क्लास का नाम क्या था, तो प्रिंट लाइन, आप देख सकते हो यहाँ पे ये है प्रिंट लाइन, PRINTLINE, जहाँ पे P और L कैपिटल है। और मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम भी प्रिंट लाइन है, बट फिर से मैं बता रहा हूँ आगे जैसे बताया कि जावा इज केस सेंसिटिव,
सो उससे होगा क्या कि दोनों प्रिंट लाइन वर्ड अलग है जावा प्रोग्राम के लिए, यानी कि दोनों को अलग अलग तौर पे वो ट्रीट करेगा। यानी वो प्रिंट लाइन क्लास का नाम हो गया, ये प्रिंट लाइन मेथड का नाम हो गया, यानी दोनों को एक अलग अलग के तौर पे यूज कर सकते। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉल करवाया, पहली बार में प्रिंट लाइन डॉट प्रिंट लाइन, यानी क्लास का नाम लिखा, डॉट यूज करके मेथड कॉल करवाया। पहली बार में ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। अब पहली बार वाला जो कॉल हो रहा है तो उसमें क्या है, इज इक्वल टू साइन 40 टाइम्स प्रिंट हो रही है। जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, जैसे यहाँ पे हम चेक करेंगे पहले कि अगर कोई एरर नहीं है तो रन होगा, तो देखिए इज इक्वल टू साइन 40 टाइम प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज किया, इसलिए एक लाइन में यूज होगा। एलन यूज करोगे तो यहाँ पे एक के नीचे एक के नीचे एक ऐसा आ जाएगा। हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिया, इसलिए एक लाइन में यूज हो गया ये। चलिए अब दूसरी मेथड कॉल करवाए जिसके अंदर प्रिंट लाइन डॉट प्रिंट लाइन ब्रैकेट के अंदर 30 दिया, यानी नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार यूज करना है, ये INTN वाला। यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे यह फोर लूप कैसे काम करेगी, INT I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन N, N की वैल्यू क्या दी है 30, यानी I की वैल्यू जब तक 30 से कम है तब तक वो हैश टैग को प्रिंट करता रहेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज किया, इसलिए एक लाइन में ही प्रिंट होगा। देखिए 30 टाइम्स हैश टैग प्रिंट हो जाएगा, देख सकते हो आप यहाँ हो गया ये। चलिए अब तीसरा जो है, तीसरी बार हमने फिर से कॉल करवाया प्रिंट लाइन डॉट प्रिंट लाइन, यानी क्लास डॉट उसकी मेथड यूज करवाई हमने, जिसके अंदर पहला है कैरेक्टर CH की वैल्यू, तो प्लस साइन ली है, और कितने टाइम्स यूज करने वाला, तो वो 20, वो दोनों वैल्यू दे दी। यहाँ पर देख सकते हो आप, तीसरी जो है मेथड हमारी ये है स्टैटिक वर्ड प्रिंट लाइन वाली, कैरेक्टर CH जिसमें प्लस साइन आ चुकी है और INTN के अंदर 20 आ चुकी है, यानी फोर लूप जब घूमेगी तो I इज लेस देन 20 है तब तक लूप घूमती जाएगी, और CH में प्लस साइन कैरेक्टर के तौर पर यूज है तो उसको प्लस साइन को प्रिंट करती जाएगी, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होने की वजह से एक लाइन में प्रिंट होगा। आप देख सकते हो जैसे ये किस तरह से प्लस साइन है वो 20 टाइम प्रिंट हो सकती है, बराबर है। तो इस तरह से पूरा पॉलीमॉर्फिज्म का कोडिंग है। मोस्ट IMP फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम ये होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर नॉर्मली पॉलीमॉर्फिज्म रिलेटेड ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो ये बहुत इजी भी है समझने में और मजा भी आता है इसको बनाने में। तो इस तरह से पूरा प्रोग्राम बना। चलिए यहाँ पे प्रोग्राम आप लिख देते हो, उसके बाद क्या करना है आपको, सेव करना। सेव करने के टाइम पे आपको क्या ध्यान में रखना है, क्लास का जो नाम होगा उसी नाम से फाइल को सेव करने और डॉट जावा एक्सटेंशन देना है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, दो क्लास है, एक क्लास का नाम प्रिंट लाइन है, दूसरे क्लास का नाम पॉलीडेमो है। तो दोनों में से कौन से क्लास के नाम से सेव करना है, तो जिसके अंदर हमारा मेन प्रोग्राम होगा, मेन किसके अंदर है, पॉलीडेमो के अंदर, यानी ये फाइल जो है हमारी वो कौन से नाम से सेव होगी, पॉलीडेमो डॉट जावा। आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर पॉलीडेमो डॉट जावा। अब सेव हो गई, अब इसको कंपाइल करवाना पड़ेगा। टूल्स मेनू में जाइए, टूल्स मेनू में कंपाइल का ऑप्शन है, कंपाइल पे क्लिक कीजिए। अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर होगी टाइपिंग के टाइम पे, तो फिर यहाँ पे एग्जिट कोड की वैल्यू 1 हो जाएगी और वहां पे आपको एरर भी दिखाएगा क्या एरर है। और अगर कोई भी एरर नहीं है, यानी कि बिना किसी गलती के आपने पूरा प्रोग्राम टाइप कर दिया, ओके कर दिया, आपको समझ में भी आ गया, कंप्लीट हो गया, अब जब कंपाइल करवा रहे हो और उसमें कोई भी एरर नहीं है, तो जावा सी कंपाइलर जो है हमारा कंपाइल करेगा और नो एरर होने की वजह से एग्जिट कोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जैसे एग्जिट कोड की वैल्यू 0 आ जाती है, उसकी डॉट क्लास फाइल बन जाएगी, यानी कि बाइट कोड फाइल जिसको हम बोलते हैं, तो बाइट कोड फाइल बन जाएगी, यानी पॉलीडेमो डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। और ये जो पॉलीडेमो डॉट क्लास फाइल है वो रन होगी। और रन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टूल्स मेनू में जाके गो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही टूल्स मेनू में जाके गो के ऊपर क्लिक करोगे, ये हमारा जो ये पूरा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। और हमें जो आउटपुट चाहिए, हमने ये जो प्रिंट लाइन मेथड जो है उसको यूज किया, एक ही मेथड को 3 टाइम यूज किया डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ, तो वो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा और हमें जो एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए वो बन सकता है, मिल जाएगा आपको। चलिए तो यहाँ पे ये पॉलीमॉर्फिज्म तक देखते हैं, ये प्रोग्राम देखा हमने, फिर से बता दूं, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स। इसके अंदर क्या होता है, एक ही मेथड जो होती है विद द सेम नेम मेथड है, बट यहाँ पे डिफरेंट मेथड यूज करने होता है डिफरेंट सिग्नेचर के साथ। तो अगर ये एक ही मेथड को एक से ज्यादा बार, जैसे प्रिंट लाइन को यूज किया, तो दैट इज नॉन एज द मेथड ओवरलोडिंग, यानी मेथड ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट देखा हमने पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर।
पॉलीमॉर्फिज्म में ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी आता है, 2 ओवरलोडिंग होती है, बट हमने मेथड ओवरलोडिंग का प्रोग्राम देखा, आपको आइडिया आ गया किस तरह से इसमें वर्क होता है। इसमें एक और एग्जांपल भी समझा है, जैसे मैक्स फंक्शन है तो किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर यूज कर सकते हो। 2 वेरिएबल लिए, 3 वेरिएबल लिए, अगर वेरिएबल फिर सेम ले रहे हो तो उसके जो डेटा टाइप्स है वो चेंज कर दिया। फिर प्रिंट लाइन वाला प्रोग्राम देखा जिसके अंदर हमने देखा कि एक में कोई भी वैल्यू नहीं, दूसरे में नंबर ऑफ टाइम्स दिए और दूसरे में कैरेक्टर और नंबर टाइम तीनों दिए, यानी कि 3 बार प्रिंट लाइन डिफरेंट मेथड यूज की और मेथड ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट जो पॉलीमॉर्फिज्म का है वो यूज करके देखा। चलिए आज के दिन के लिए बस यही इतना ही देखते हैं। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी, हरि ओम।